हेलो सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ सर, वॉइस आ रही है। ठीक है। प्लीज रिप्लाई फ्रॉम स्टूडेंट साइड आल्सो। सर स्टार्ट करें। हाँ सर, उसमें चैट बॉक्स में आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन डे 6. आई थिंक इट्स डे 6. So today we will study network topology. So uh, I will share the screen first. So the slide is visible, I think. Yes, sir. Okay. So network topology. What is network topology? This is simply the way in which the network of computers is connected. Means what is the geometrical interconnection pattern of different devices, computers, nodes, stations, all these things. Their pattern, interconnection pattern, is called the topology, or simply network topology. Network topology can also be defined as the geometrically interconnection pattern by which the stations, nodes, computers are connected using suitable transmission media. Okay, please ignore this 2 2. This has come by mistake, I think. After media, this 22 is written. This is ignorable thing. This has come by mistake, I think. So there are several types of topologies. We will discuss one by one each topology. So first one is the mesh topology. So mesh topology, as you can see, all the stations are connected with each other through dedicated links. So characteristics of this mesh topology is that it is fully connected, means connected with each other in full-fledged manner. This is robust, highly reliable because if any links fails, we may get alternate path or link or the proper data communication. Then further there are some drawbacks also, that this is not flexible. This type of topology is not so flexible, means its expansion or scalability is poor. So poor expandability, number of links which are required are very high. So this is given by n into n minus 1 by 2. This is the formula to find out the number of links required in a particular uh, network having n stations to connect with each other. Then further, if we talk about the expansion of this type of network, then we can see by this example that there were 4 nodes, and if one new node is introduced, we need n. Because earlier there were 4, it means we need 4 new links to expand this network, because we have to connect with each of the other node. So cost of cabling will be very high for larger network, means if you want to do the expansion, if our system or computer network is such that it is keeps on expanding, then this type of topology will not be preferred because of its high cost. Cabling cost will be high. This topology is rarely used in practice. That's why this in practical, this type of topology is rarely used. It is used only at very specific places or areas or need. So
next type of topology is the bus topology. This is a very simple topology and very commonly used, where there is a common bus or the transmission media through which different stations are connected, systems are connected through taps. So taps provide the link between the systems and the transmission media. And at the end of both the end of this type of network, we have terminators which absorbs the propagating data so that they may not be reflected back to the network or the bus, so that interference may take place. So this is the shared media. These are the taps through which our stations or systems connected. Now, key characteristics of this type of topology means of bus topology is that it's very flexible. We can easily remove or add new systems. Expandable, moderate reliability. Obviously, the reliability will not be too high because there is common media or the channel over which all the systems are connected. So if some failure occurs, this will affect all the systems or all the communication. Moderate performance. Then the next type of topology is the star topology. Hello. Yes, sir. हाँ सर. अगर continue करिए. और ठीक ठीक. So in star topology, as you can see in the figure, there is a central link which connects all other systems or nodes through one-to-one link, point-to-point link. These systems are connected with this star coupler through two point-to-point link. So if we see this with close observation, then this is a kind of bus topology type system. If we simply see that if any data communication takes place from this system to some other system, then it will transmit the data, and this star coupler will process that data, identify the destination, and send to the destination. Or there is one more mode of working, that received data is transmitted to all the stations, and then to which this data is belonging, that will be processed by that particular system. So there are two modes. One is the broadcast mode, which is also called the repeater mode, in which data will be broadcasted to all the systems, and to a particular system that data will be belonging depending upon the address, and that system will further process that data. And then another mode is the switch mode, broadcast mode and switch mode. In switching mode, the data will be processed by the star coupler itself, and it will be sent to that particular system only to which it belongs. So in this way, this type of topology will have high speed. It will be very flexible, because if we add some other, if we do the expansion, then there cost will not be too high, as well as it will not affect other systems. Therefore, reliability is also very high. Maintenance is high. High means it's very maintainable. Maintainability is high.
So speed is very high. Speeds of data transfer can be achieved by using star topology, particularly when the star coupler is used in switch mode. So when we use the switching mode, then the speed will be particularly very high. And when we use it in simple broadcast or repeater mode, then it will be very similar to the, or in fact similar to the bus topology, where the data is uh, transmitted from one system and it will be processed by only that system to which it belongs, or it will be received by that system to which it belongs. Then we have this topology is the easiest to maintain among the other topologies. So its maintenance is very simple and very easy. As the number of links is proportional to n, this topology is very flexible and is the most preferred topology. So here the number of links is proportional to n. So simply this is the most preferred topology. The next type of topology is the ring topology. So in ring topology, there is a ring type of structure or a pattern through which all systems or nodes are connected through repeaters. Repeaters simply receive the signal at one end and transmit to another end without processing it. So through these repeaters, these systems are connected to our main channel or the main communication line. And the data propagates in one direction, either in clockwise or in anti-clockwise. So 1 minute. This is the ring topology. So we can see that these systems are directly connected to this channel. So this type of topology is not very reliable, because if some failure occurs or link failure occurs between any two systems, then this will affect all other systems, because data is propagating through this channel only, either in clockwise or anti-clockwise direction. It means it's unidirectional propagation of the data. So here the repeaters which are connecting the channel to the systems have three modes of operation. First is the listen mode, in which data comes and it can go out, means simply the system or the node will receive the data and it can transmit the data which is propagating in the channel. And then second mode is the transmit mode, in which it will take the data and transmit the data, means the data here, the data is further traveling to the other nodes, whereas here it is receiving and then processing and then giving to the other nodes, means to the channel. So this is the transmit mode. Then third mode is the bypass mode, in which there will not be any processing by this node, and data will be simply bypassed through this station. Then the next topology is the tree topology. So tree topology is actually the expansion of the bus topology. So main feature of this topology are scalability and flexibility. So if we see this, these are the repeaters and have 8 ports, means 8 node systems can be connected to this repeater. And further, if we have to connect more than this, then there is a cascading which has been done in this form, so that to connect
another repeater. Okay, so this is how the expansion is very simple and very scalability and flexibility is the main feature of this type of topology. Then we have unconstrained topology, in which there is no particular definition or the constraints or the boundaries in which we define the system. For example, there is a definite structure, but here in unconstrained topology, we do not have such definite structure or interconnection of the systems or nodes. For that, so in this type of system topology, there may be several parts or segments of the network in which some part will be connected in a particular topology and some will be in other topology, or there will be some mixed type of topology. So this is also a very commonly used topology, because depending upon the need, these type of several types of topologies are mixed at a particular area or a big area to achieve different tasks successfully. So these are some simple concepts of topology, means network interconnection, or we can say the manner in which or the pattern in which different systems nodes are connected in a particular network. Okay. So in the last class, we studied about the layered architecture, in which we studied the OSI model, in which we saw different layers of the मैं क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ जो टोपोलॉजी बेसिस पे उसको लोग सॉल्व करेंगे समझा सर। हाँ सर। सर मैं भी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ टोपोलॉजी बेस्ड इनके अच्छा चैट सर, बॉक्स में। ठीक है सर, ठीक है। Meanwhile, you can do one workout which will be given by Avdesh sir into the chat box. The chat box में देंगे किस पे देंगे? चैट बॉक्स में। ठीक, okay. So please have a look in the chat box. क्वेश्चन मिल गया ना सबको?
सब लोग रिजल्ट चैट बॉक्स में डालिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ सकते हैं, अगर कोई सॉल्व ना कर पा रहा हो। विवेक तिवारी कुछ कहना है क्या बेटा? विवेक तिवारी। सब लोग काम कर लिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं? अगर किसी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो आपको बताइए। हेलो सर, जी सर। रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या सर आप? हाँ, इधर भी रिकॉर्डिंग लगा है। आप लगाए हैं ना रिकॉर्डिंग? मैं क्लाउड पे कैसे सेव किया जाता है उसको चेक कर रहा था, इसलिए लगा। क्या कह रहे हैं सर? मैं क्लाउड पे सेव कर रहा था ना, तो वही मैं चेक कर रहा था कैसे सेव होता है। किसी भी नेटवर्क की एक्टिविटीज को चेक करने के लिए वो कैसे वर्क कर रहा है और क्या वर्क हो रहा है उसको चेक करने के लिए नेटवर्क सिमुलेटर्स यूज किए जाते हैं। नॉर्मली कोई भी डेटा जो मूव कर रहा है, ये चीजें नॉर्मली नेटवर्क में आपसे नहीं कर सकते, या कोई भी मतलब डिवाइस कैसे वर्क कर रही है उसको कैसे
वहाँ पर मतलब सेटिंग की जा सकती है। सारी चीजें नॉर्मली यहाँ पर नेटवर्क सिमुलेटर के थ्रू शो किया जाता है। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क में जो सिमुलेटर्स अवेलेबल है उसमें बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर, NS2, NS3, टालनेट या नेटसिम। यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर जो अवेलेबल है हमारे पास इस समय सिस्को पैकेट ट्रेसर है। सिस्को पैकेट ट्रेसर में किसी नेटवर्क को कैसे सिमुलेट किया जाता है वो चीजें करती है। यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है बेसिकली सिस्को पैकेट ट्रेसर ओपन करने के बाद इस टाइप से यहाँ पर विजिबल होगा। यहाँ पर जो मिडिल पोर्शन है ये वर्किंग इन्वायरमेंट है, लॉजिकल वर्किंग इन्वायरमेंट। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर कॉर्नर में यहाँ पर जो नेटवर्क डिवाइसेज हैं नॉर्मली यूज होते हैं वो सारी चीज यहाँ पर डिवाइसेज अवेलेबल हैं। लाइक दैट यहाँ पर राउटर्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप के राउटर्स अवेलेबल हैं जिनका यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर नेटवर्क को डिजाइन करने में। एंड these are the switches जिसको यूज कर सकते हो आप यहाँ पर नेटवर्क डिजाइन करने में। एंड हब्स एंड वेरियस वायरलेस डिवाइसेस एंड दिस इज द कनेक्शन। किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए वहाँ पर जो कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है इस आइकन से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, और इन डिवाइसेस के लिए यहाँ पर इस आइकन पे क्लिक करने के बाद जो भी इन डिवाइसेज अवेलेबल है वो इन डिवाइसेज यहाँ पर विजिबल हो जाएगी। अब अगर किसी नेटवर्क आपको डिजाइन करना हो, सिंपलेस्ट नेटवर्क बेसिकली होगा टू कंप्यूटर को कनेक्ट करना। टू कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट है टू कंप्यूटर की। यहाँ पर जो इन डिवाइसेज है इस पर आप क्लिक करिए, यहाँ पर डिवाइसेज विजिबल हो जाएंगे। इस डिवाइस में से जो डिवाइस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है उसको आप लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट डिवाइस को सिलेक्ट किया। अब इसको यहाँ पर वर्किंग एनवायरनमेंट में यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करने के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगा। सेकंड डिवाइस ओके। अब इसको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायरमेंट है। कम्युनिकेशन चैनल यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको सेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएंगे दो ऑप्शन आ रहे हैं। फर्स्ट है RS232 एंड सेकंड है पार्टीशन। RS232 जो होता है बेसिकली ये कन्वर्सेशन के लिए, ये डेटा ट्रांसमिट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है। RS232 का यूज बेसिकली राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर हम जो कनेक्ट करेंगे फास्ट इंटरनेट पोर्ट से हम कनेक्ट करेंगे आपको। उसके बाद यहाँ पर सेकंड डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर भी फास्ट इंटरनेट को हम सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ग्रीन लाइट जल रही है, इट मींस इसका फिजिकल कनेक्शन ओके है, बट यहाँ पर अभी कन्वर्सेशन नहीं हो सकता। रीजन है कि यहाँ पर इन डिवाइसेस को अभी आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, इसमें आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। ओके, आईपी एड्रेस बेसिकली किसी भी डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। नॉर्मल टर्म में बेसिकली ये बोला जाता है कि वो डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है, लेकिन एक्चुअल टर्म में है वो इंटरफेस को डिफाइन करता है। नॉर्मली यहाँ पर हर एक बोर्ड डिवाइसेज में आपको आईपी एड्रेस सेट करना पड़ेगा। इसको सेट करने के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक, उसके बाद यहाँ पर न्यू विंडो ओपन होकर आ गई है। यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करने के लिए आपको यहाँ पर डेस्कटॉप ऑप्शन दिख रहा है, डेस्कटॉप ऑप्शन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर वेरियस ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे आईपी कॉन्फ़िगरेशन, डायल अप, टर्मिनल, कमांड प्रॉम्प्ट etc। यहाँ पर अगर आपको आईपी एड्रेस सेट करना है तो उसके लिए आईपी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो सर विजिबल है आईपी कॉन्फ़िगरेशन, समझो सर? हाँ सर, हाँ सर। अब यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करने के लिए जो भी आईपी एड्रेस आप यहाँ सेट करना चाहें
उस आईपी एड्रेस को आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। तो 192.12.12.1 ओके। सबनेट मास्क आप मैन्युअली यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। अगर मैन्युअली नहीं टाइप करना है तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जिस क्लास का आईपी एड्रेस होगा उस क्लास का यहाँ पर सबनेट मास्क आ जाएगा। ओके, यहाँ पर बेसिकली जो आईपी एड्रेस होते हैं इसकी बहुत क्लासेस होते हैं, तो मैं भी शो कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आईपी एड्रेस जो क्लासेज अवेलेबल हैं, यहाँ पर 5 क्लासेज यहाँ पर शो की गई है। इनकी रेंज डिफरेंट है। जैसे यहाँ पर क्लास ए की जो रेंज है 1.0.0.0 to 127.255.255.255। ओके, एंड क्लास बी की रेंज जो है यहाँ पर 128 से स्टार्ट है और यहाँ पर स्टार्टिंग 191 तक आएगा। और क्लास सी की रेंज जो है 192.0.0.0 टू 223.255.255.255 सब वैरी करेगा। यहाँ पर देखिए जो वहाँ पर आईपी एड्रेस हमने मेंशन किया था 192 से मेंशन किया था। इट मींस वो क्लास सी से बिलोंग कर रहा है। उस केस में जो सबनेट मास्क होगा क्लास सी का सबनेट मास्क होगा, और क्लास सी का जो डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। इसलिए वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो लिया गया है डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.255.0 लिया गया। और रिमेनिंग यहाँ पर जो क्लासेज हैं, क्लास से ए मल्टीकास्टिंग के लिए यूज किया जाता है एंड क्लास ई 8 यूजर के लिए रिजर्व किया गया है। आप व्यक्ति बारे कोई प्रॉब्लम? आपने हैंड को रेज किया है, कोई प्रॉब्लम? वो बहुत देर से हैंड रेज है वो, अच्छा, तो रिस्पॉन्स। उसके बाद थर्ड कॉलम इसमें आता है डिफॉल्ट गेटवे। बेसिकली डिफॉल्ट गेटवे का यूज उस केस में होता है अगर लार्ज नेटवर्क है, अगर टू नेटवर्क अगर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, अगर टू नेटवर्क कनेक्टेड होंगे उस केस में वहां पर राउटर का यूज किया जाता है। अगर राउटर का यूज किया गया है उस केस में डिफॉल्ट गेटवे उस पर्टिकुलर राउटर का आईपी एड्रेस होगा। लेकिन यहाँ पर इस केस में हमने जस्ट टू सिस्टम को ही कनेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर डिफॉल्ट गेटवे कोई नहीं होगा। और यहाँ पर डीएनएस सर्वर की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली डीएनएस सर्वर का रोल होता है आईपी एड्रेस को नेम में चेंज करना और नेम को आईपी एड्रेस में, तो इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। उसके बाद को सेट करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए। ये सेम प्रोसेस यहाँ पर लैपटॉप जो एंड्रॉइड डिवाइस है सेम प्रोसेस इस पे भी अप्लाई होगा। इस पे भी आप डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आईपी एड्रेस सेट करने के लिए आईपी आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख बोथ डिवाइसेस जो हैं जस्ट टू डिवाइसेस ही हैं यहाँ पर। उस केस में जो आईपी एड्रेस होगा वो जो फर्स्ट डिवाइस का था उसी रेंज का ही आईपी एड्रेस सेकंड डिवाइस का भी होगा।
बेसिकली उसके रीजन ये है कि उसका नेटवर्क, बोथ का नेटवर्क सेम है, तो उस केस में आप नेटवर्क के एड्रेस को, नेट आईडी को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। आप जो होस्ट आईडी है, मतलब लास्ट के जो डिजिट है, जस्ट उसको ही मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें भी सबनेट मास्क के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएगा, तो इसको क्लोज कर दीजिए। ओके, अब यहाँ पर अगर इसके ऊपर माउस ले जाकर आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए आईपी एड्रेस सेट हो चुका है। यहाँ पर देखिए लिंक आईपी एड्रेस, आप उसके बाद जो भी आईपी एड्रेस हमने सेट किया था स्लैश, देखिए इसमें जो आईपी एड्रेस शो कर रहा है 192.12.12.2/2024। बेसिकली जो भी सबनेट मास्क है उसको यहाँ पर नंबर ऑफ 1 के टर्म में लिखा गया है। बेसिकली जो सबनेट मास्क था 255.255.255, अगर आप इसको बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो सारी वैल्यू 1 होगी, और टोटल अगर 1 को काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ 124 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर /24 लिखा गया है। ओके, अब यहाँ पर ये चेक करना है यहाँ पर कनेक्शन, यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके लिए बेसिकली आपको पिंग कमांड का यूज करके आप इसको चेक कर सकते हैं कनेक्शन एक्टिव है या कन्वर्सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले आप किसी भी डिवाइस को चूज करिए। ओके, यहाँ पर पिंग कमांड बेसिकली कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन होगी। यहाँ पर हम इस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे ओपन करेंगे। ओके सर, ये विजिबल है ना कमांड प्रॉम्प्ट? सर हाँ सर, विजिबल है सर, कमांड प्रॉम्प्ट विजिबल। इसके बाद यहाँ पर जो कमांड टाइप की जाएगी पिंग, PING। ओके, उसके बाद स्पेस, अब सेकंड डिवाइस का जो भी आईपी एड्रेस है जिससे आपको चेक करना है वहां पर कन्वर्सेशन हो रहा है कि नहीं, उसका आईपी एड्रेस यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि जिस डिवाइस का हमें चेक करना है उसका आईपी एड्रेस है 192.12.12.1। अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे, यहाँ पर देखिए पिंगिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ ओके, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रिप्लाई आया है डेस्टिनेशन से, वहां पर उसने अपना आईपी एड्रेस पहले मेंशन किया है, और उसके बाद यहाँ पर जो डेटा सेंड किया जा रहा है उसकी साइज दिखाया गया है 32 बिट। उसके बाद यहाँ पर टाइम दिया है, टाइम इक्वल टू 7 मिली सेकेंड। इट मीन्स वहां से रिप्लाई करने में जो उसको टाइम लग रहा है यहाँ पर 7 मिली सेकेंड लगा। और लास्ट में यहाँ पर एक कॉलम दिया है TTL। ये बेसिकली कोई भी पैकेट या ट्रेन सेंड किया जाता है कहीं पर, उसकी मैक्सिमम लाइफ टाइम डिसाइड की जाती है। अगर तब तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता है तो नेटवर्क में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पर जो पैकेट सेंड किया गया उसकी जो मैक्सिमम लाइफ टाइम है 128 मिली सेकेंड। अगर वो 128 मिली सेकेंड तक वो डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचता तो उसको वहां तक उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है नेटवर्क के थ्रू। और सेकंड रिप्लाई में भी वही सेम चीजें हैं, बस यहाँ पर जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, क्योंकि जो फर्स्ट रिप्लाई किया जाता है उसमें टाइम ज्यादा लगता है, बाकी के जो रिप्लाई होते हैं उसमें टाइम रिड्यूस होने लगता है। यहाँ पर देखिए सेकंड में 5 मिली सेकंड एंड थर्ड में 1 मिली सेकंड जस्ट लगा है, और फोर्थ में यहाँ पर 6 मिली सेकंड। अगर इसका एवरेज देखेंगे
यहाँ पर पूरा दिया गया है, मिनिमम 1 मिली सेकंड लगा है टाइम सेंड करने में, मैक्सिमम 7 मिली सेकंड एंड एवरेज 4 मिली सेकंड। ओके, यहाँ पर देखिए पैकेट सेंड किया, यहाँ पर जो पैकेट सेंड 4 रिसीव्ड 4 लास्ट 0, इट मीन्स यहाँ पर कनेक्शन ओके है, यहाँ पर कन्वर्सेशन ओके है, कन्वर्सेशन हो रहा है। ओके, नॉर्मली रियल टाइम में भी जब किसी सिस्टम को चेक करना होता है, जैसे किसी सर्वर को आपको चेक करना है, अगर वो एक्टिव है कि नहीं, उस केस में आप कमांड प्रॉम्प्ट से पिंग कमांड के थ्रू आप उसको चेक कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सर्वर को, इस समय वो रिस्पॉन्ड दे रहा है कि नहीं दे रहा है। आप ये सेम इसी प्रोसेस से आप सेकंड सिस्टम, जो सेकंड जो दूसरा सिस्टम है यहाँ पर, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके लिए भी यहाँ पर आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, यहाँ पर पिंग कमांड के बाद जो भी आईपी एड्रेस होगा, यहाँ पर सेकंड सिस्टम का आईपी एड्रेस था 192.12.12.2। इसमें भी देखिए यहाँ पर पैकेट सेंड 4 रिसीव 4 लास्ट 0, इसमें से यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, यहाँ पर दोनों दो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। ओके, यहाँ तो बेसिकली फर्स्ट यहाँ पर मैंने चेक किया पिंग कमांड के थ्रू यहाँ पर कन्वर्सेशन हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर एंकर में भी है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर कन्वर्सेशन है कि मतलब वहाँ पर कन्वर्सेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उसके लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड पे यहाँ पर सिंपल पीडीयू एंड कॉम्प्लेक्स पीडीयू दिया गया है। यहाँ पर सिंपल पीडीयू के थ्रू भी आप इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो दोनों डिवाइसेस कनेक्टेड हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसके लिए आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद पर्टिकुलर किसी डिवाइस पर पहले आप क्लिक करिए, उसके बाद जहाँ अंदर डिवाइस पर भी क्लिक करिए। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ पर दिखा रहा है सक्सेसफुल और सोर्स लेफ्ट ऑफ 0 एंड डेस्टिनेशन 0। एंड यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज किया जा रहा है आईसीएमपी। आईसीएमपी बेसिकली डेटा लिंक लेयर का प्रोटोकॉल है जिसका यूज किया गया है यहाँ पर पैकेट को वहाँ पर ट्रेन को सेंड करने के लिए। यहाँ पर रियल टाइम में दिखाया गया, अगर इसको आपको सिमुलेशन में देखना है देखिए यहाँ पर सिमुलेशन को दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पहले डेटा पैकेट यहाँ पर गया, उसके बाद इसका एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर अप्लाई किया गया है। क्योंकि नॉर्मल कन्वर्सेशन नेटवर्क में कन्वर्सेशन करते वक्त कोई भी पैकेट या फ्रेम सेंड किया जाता है, रिसीवर द्वारा उसको एक्नॉलेज किया जाता है कि वो सक्सेसफुली यहाँ पर रिसीव हो गया है। अगर वो एक्नॉलेजमेंट नहीं किया जाएगा, जो सेंडर है वो एक टाइमर यूज करता है, अगर वो टाइमर कोलैप्स हो जाएगा सेम डेटा को फिर से सेंड कर देगा। इसलिए जो रिसीविंग डिवाइस है वो सक्सेसफुली रिसीव करने के बाद वहां पर वो एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है सेंडर के पास। ओके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप चैट बॉक्स में बताइए। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में आ गया कि नहीं सबको? आप लोग रिप्लाई करिए।
समझे सर? हाँ सर, वॉइस नहीं जा रही क्या? जा तो रही सर। तो रिप्लाई नहीं किया सब आने लगे। चैट बॉक्स में रिप्लाई आ रहा है सर। अगर सिस्टम ना हो तो उस केस में आप मोबाइल में भी पैकेट जैसे को इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं, अब इसके बाद ओके, अगर लाइन क्रिएट करना हो उस केस के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर स्विच को सिलेक्ट करेंगे, पर्टिकुलर कोई भी स्विच सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, एंड यहाँ इन डिवाइसेस से आप यहाँ पर डिफरेंट सिस्टम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइन क्रिएट करने के लिए इसलिए वहाँ पर राउटर की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट स्विच से ही वर्क हो सकता है। यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ पर स्विच को सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर 3 डिफरेंट सिस्टम। अब इनको कनेक्ट करने के लिए बेसिकली यहाँ पर जो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं इनको कनेक्ट करने के लिए अगर डिवाइसेस से होती हैं उस केस में कॉपर क्रॉस ओवर का यूज किया जाता है, और अगर डिवाइसेस डिफरेंट हैं तो कॉपर स्ट्रेट थ्रो का यूज किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट जो पेपर लिखा है उसमें मैंने कॉपर क्रॉस ओवर का यूज किया था क्योंकि वहाँ पर दो डिवाइसेस सेम थे। यहाँ पर बेसिकली कॉपर स्ट्रेट थ्रो का यूज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवाइसेस डिफरेंट है, यहाँ पर राउटर एंड कंप्यूटर अवेलेबल है। यहाँ से वायर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर फास्ट इथरनेट, एंड यहाँ पर स्विच में देखिए यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स अवेलेबल हैं। फास्ट इथरनेट, कंसोल कंसोल केबल, यहाँ पर कंसोल पोर्ट एंड फास्ट इथरनेट। यहाँ पर बेसिकली कंसोल का यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि कंसोल का यूज किया जाता है यहाँ पर स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पर हम जस्ट फास्ट फास्ट इथरनेट को सिलेक्ट करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए डिवाइसेस कनेक्ट हो गई हैं। अब यहाँ पर जितने भी इंड सिस्टम्स हैं, इसमें से आपका जो पीसी अवेलेबल है इसमें आपको आईपी एड्रेस सेट करना होगा। जैसे इसके पहले आपको फर्स्ट पेज दिखाया गया उसी प्रोसेस से आपको यहाँ पर हर एक सिस्टम में आपको आईपी एड्रेस सेट करना होगा। और यहाँ पर सेम नेटवर्क है तो इसका जो नेटवर्क आईडी होगा सबका सेम होगा, इसमें लास्ट डिजिट जस्ट चेंज करना है इसमें।
तो स्क्रीन शेयर कर दीजिए जो न्यू विंडो है आईपी वाली। तो देखिए जैसे इसके पहले कंप्यूटर में पिछले आईपी एड्रेस सेट किया गया, तो उससे यहाँ पर भी आईपी एड्रेस लिखा गया, उसके बाद सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट आ गया। और यहाँ पर भी राउटर नहीं है, इसलिए डिफॉल्ट गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, डीएनएस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सेम प्रोसेस बाकी जो सिस्टम जो है उस पर भी अप्लाई करना है। अभी कॉल कर रहा हूँ, फोन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, अभी मैं कॉल बैक कर रहा हूँ। यहाँ पर थ्री सिस्टम थे और इस पे सबसे आईपी एड्रेस सेट कर दिया गया है। यहाँ पर स्विच जो है बेसिकली डेटा लिंक लेयर की डिवाइस है, सो यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट करना कोई नेसेसरी नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं, लेकिन उसकी लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर बेसिकली एक पोर्ट होता है वी लैन फर्स्ट पे आईपी एड्रेस को सेट किया जा सकता है, बट डेटा लिंक लेयर तक आईपी आईपी एड्रेस की कोई रिक्वायरमेंट मैनुअली नहीं होती, मैनुअली नहीं होती। अगर आप सेट करते हैं वो भी ओके है। अगर आपके एड्रेस आप नहीं सेट करते हैं तो उसके भी work करेंगे। ओके, यहाँ पर आप चेक करिए कि यहाँ पर ये सिस्टम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि नहीं। अगर और यहाँ पर जो कन्वर्सेशन होगा, जैसे मान लीजिए इस सिस्टम पर यहाँ पर लैपटॉप पीसी, अगर यहाँ पर लैपटॉप वन जो है, अगर पीसी जीरो से कम्युनिकेट करना चाहता है तो मैसेज जो है सबसे पहले यहाँ पर स्विच के पास जाएगा। स्विच उसके बाद उसको प्रोसेस करेगा और चेक करेगा कि इसका डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। डेस्टिनेशन एड्रेस अगर इस डिवाइस का होगा तो वहाँ पर पैकेट डिवाइस पे, अगर इस डिवाइस का वहाँ पर डेस्टिनेशन एड्रेस होगा तो उस केस में फ्रेम को सेंड कर दिया जाएगा इस पर्टिकुलर डिवाइस। ओके, यहाँ पर चेक करते हैं इसको। यहाँ पर मैं पीसी फर्स्ट से चेक करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर लैपटॉप फर्स्ट से पीसी जीरो से कनेक्टेड है कि नहीं। तो पीसी जीरो जो आईपी एड्रेस है, तो पहले पिन कमांड, उसके बाद पीसी जीरो का आईपी एड्रेस।
PC0 की वाईफाई एड्रेस है 192.12.12.1। ओके, इसको क्लिक करके देख करिए। यहाँ पर भी देखिए जो रिप्लाई आ रहा है, पैकेट सेंड 4 रिसीव्ड 4 लास्ट 0। इट मीन्स यहाँ पर लैपटॉप 1 PC0 से कम्युनिकेट कर रहा है। अब यहाँ पर अगर PC0 अगर लैपटॉप 0 से कम्युनिकेट कर रहा है कि इसको चेक करने के लिए यहाँ पर पिंग कमांड यूज करिए। पिंग उसका जो भी उसका आईपी एड्रेस हो, उसका आईपी एड्रेस है 192.12.12.2। यहाँ पर देखिए ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर अगर आप इसके पीडीएफ थ्रू चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको लीजिए, उसका जस्ट जिसका चेक करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर लैपटॉप 1 PC0 से कम्युनिकेट कर रहा है नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पर क्लिक करिए। तो देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड में यहाँ पर शो कर रहा है लैपटॉप, यहाँ पर सक्सेसफुली सोर्स लैपटॉप 1 डेस्टिनेशन PC0। और अगर इसका आप जस्ट रिवर्स चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर पहले क्लिक करिए, उसके बाद इसको क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए सक्सेसफुल आ रहा है सोर्स PC0 डेस्टिनेशन लैपटॉप 0। यहाँ पर सोर्स जो है PC0 है एंड डेस्टिनेशन लैपटॉप 0, ये भी सक्सेसफुल है। ओके, यहाँ देखिए टू फ्रेम सेंड किए गए थे, उसका यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है उसे शो कर रहा है। फर्स्ट जो था यहाँ पर गया था, उसके बाद यहाँ से इसका एक्नॉलेजमेंट आया, सेंड किया। उसका सेकंड था यहाँ से पहले यहाँ पर गया स्विच पे प्रोसेस हुआ, ऊपर जो भी आईपी एड्रेस था यहाँ पर यहाँ पर उसको सेंड कर दिया। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं इन दोनों को ऐड करना? अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो बताइए। सबको समझ में आ गया? अगर किसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए। ओके, ओके फिर नेक्स्ट चलिए सर। हाँ चलिए सर। सर, हाँ सर। हाँ सर फिर स्टार्ट करते हैं आगे। हाँ ठीक है सर। सो so students, you have seen that how much important is the network simulation. It gives us the realization of the topology of the network along with all the protocols. By doing more and more practice, you will be proficient enough upon these network topology techniques to understand the topology as well as the included protocols. So you must install it today and keep on practicing a lot more, means more and more. It will make you more perfect to understand the network, different network requirements, their protocols, as well as physical requirements or significance. So I hope that you will install this packet tracer immediately and start practicing.
With this, we end this lecture for today's. And there is one activity sheet which I am going to share in the chat box. Please submit it before going or before leaving. This will cover your attendance also. Thank you.